Hi friends, so this is second part of fraction, addition and subtraction. Okay, so in this part we will going to see the addition and the subtraction of fraction. How we can add and subtract the fraction. So you can like and subscribe our channel so that we will get more motivation or the encouragement and we will make the more and more videos for you. So here we will start addition. So directly we are starting the addition by using the examples. So here first observe this example. In this example, this is nothing but the fraction that we seen in the last video. Okay, 1 upon 18. This is the fraction. And here what we are observing, this denominator is equal. Okay, if the denominator is equal, then in the addition we ओनली ऐड इट्स न्यूमरेटर्स. हम क्या करते हैं, उसका न्यूमरेटर ऐड करते हैं. सो हियर वी हैव एडेड द न्यूमरेटर्स एंड denominator is as it is. So you have to write this denominator as it is. Okay, don't add this denominator, only just you have to write the denominator as it is. Okay, and add its numerator, that is 1 plus 1, so it is 2. So the answer is 2 upon 18. So here we got the answer, that is 2 upon 18. Now next, 7 upon 7 minus 5 upon 7. Here again you can see that the denominator is same. So here again we have to subtract it denominator. So now here in this subtraction case, what you have to do, you have to subtract the smaller number from the bigger one. Okay, so here 7 minus 5, so you have to write this as 7 minus 5 and denominator 7. Okay, so 7 minus 5, that is 2 divided by 7. So here you will get your answers. So this way we can subtract the fraction. Again we will see the next example and then we will be moving on the next videos. So here see question number third one, 1 upon 22 plus 21 upon 22. So here again the denominator is same, equal. So here again we have to add its numerator, that is 1 plus 21, and denominator as it is. So 1 plus 21, that is 22, and divided by 22. So here we got the answer 22 upon 22. अगर आपको यहाँ पे स्टॉप होना है तो ऐसे ही रख सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू मेक दिस इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज 21 1 ज़ा 21, 21 1 ज़ा 21, दैट इज इक्वल्स टू 1. मतलब इसका आंसर हम लोग 1 भी लिख सकते हैं. ओके, सो यहाँ तक भी आप लोग लिख सकते हो, इसके आगे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है. सो दिस इज़ फॉर योर मोर इंफॉर्मेशन. हियर अगेन we can divide this fraction, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18. So we can write this as 1 upon 9. Okay, so this is optional. Now we are moving towards the next fourth question. So now in this fourth question we can see the different examples. Now in the previous three examples, what we seen that the denominator is equal, and here you are observing that the denominator is different. So how we can solve this? We can't add directly if the denominator is same. If the denominator is same, then we can't add it directly. So what you have to do, we have to make this denominator equal. इस डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना है, तभी हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं किया और डायरेक्टली ऐड किया तो आंसर गलत होगा. तो डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करना है, तो हियर 3 and 7 वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 3 and 7. 3 और 7 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है. अब 3 और 7 यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं. ओके, प्राइम नंबर है, तो
प्राइम नंबर अगर है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब हमें क्या करना है, इस 3 को अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और इस 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर जो है वो डिनोमिनेटर में 21 मिल जाएगा, मतलब दोनों तरफ 21 होगा। सो ये तो हो गया। बट अब हम लोग पहला वाला ये लेते हैं 2/3, ये फ्रैक्शन लिया। अब हम क्या करते हैं, इस 2/3 को हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो खाली डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, होल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। ओके, सेम फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज 1/7। अगेन राइट 1/7, नाउ मल्टीप्लाई 1/7 by 3 to its numerator and denominator. Both the numerators and denominator you have to multiply it by 3. Now you will get the next step. So here in the next step, multiply this 7 to the 14 and this 7 3 is 21. After that add this number and now multiply this 3 1 3 and here denominator 21. Okay, now you got the denominator same, equal. Now you can add its numerators, so that is 14 plus 3, 14 plus 3 17 and denominator as it is 21. So here in this way we can add the fractions having different denominator. So here next step, 3 next example 3/10 and 7/15. Here again you are observing that the denominator is different, 10 and 15. So what we have to do, we have to find out the LCM of 10 and 15. So we have made the dedicated video for how to find out the LCM and HCF. So you can watch this video. मैं क्या करूँगा, इसका डिस्क्रिप्शन ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अभी ऊपर कॉर्नर में आपको यहाँ पे इसका लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, LCM और HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, सो वहाँ पे आपको पूरा परफेक्ट नॉलेज मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, इधर 10 और 15 का LCM निकालें। सो द LCM ऑफ 10 and 15 is 30. Now those who have practiced much, then they will directly come to know that the LCM of 10 and 15 is 30. Okay, if you practice more and more LCM, then you will get the answer in within a second, right? So here 30. Now what you have to do, we have to make this denominator 30. whichever the example, their denominator must be 30. हमको क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर 30 करना है। Now next take this number here 3/10 and after that you have to decide that this is the 10, so by which number we have to multiply, then this will be the 30, because we want 30 at the denominator. So if you multiply this 10 by 3, then you will get 30. Okay, so now we have to multiply the whole fraction, that is 3/10 by 3 to its numerator and denominator. Okay, so same case again in the next example, in the next 7/15. So if you multiply 2 by 15, then you will get 30. So you have to multiply its numerator and denominator by 2. So here next step, 3 3s are 9, write it here, and 3 10s are 30. Again 7 2s are 14 and 15 2s are 30. Here we have written. Now we got the same denominator here. Now you have to write this denominator once and add its numerator, that is 9 plus 14. 9 plus 14, that is 23, and divided by 30. So here in this way we can write the denominator. Okay, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, LCM फाइंड आउट करके डिनोमिनेटर इक्वल करके हमें आंसर देना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 4/9 और 2/7। 9 और 7 का हमें क्या करना है, LCM निकालना है। बट यहाँ पे LCM निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 एक जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टॉप होना है। ओके,
एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या करना है, बेस इक्वल करना है। तो 4/7 को हम लोग क्या करेंगे, 4/9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2/7 को हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। देन वी विल गेट द डिनोमिनेटर सेम इक्वल। सो नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28 and 9 multiplied by 7 that is 63. Again 2 multiplied by 9 18, 7 multiplied by 9 that is 63. So now add 28 and 18, okay, that is 46, and this denominator write this denominator as it is, that is 63. So this way we will find out the answer. ऐसे हम लोग आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एक साथ 3 अगर फ्रैक्शंस आए तो उसका एडिशन हम लोग कर सकते हैं क्या, तो यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, एडिशन ऑफ ए 3 फ्रैक्शंस टुगेदर। अब ये 3 फ्रैक्शंस यहाँ पे, बट यहाँ पे तो इनका डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। अब क्या करेंगे, सो सिंपल है, एलसीएम निकालेंगे। 3, 4 और 2 का एलसीएम निकाल दें। तो ये एलसीएम थोड़ा विद इन फ्रैक्शन हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ओके, सो हियर आई एम राइटिंग दिस 3, 4, 2। तो अभी हमें क्या करना है, कोई भी जो 2 नंबर्स है उसको कॉमन नंबर कोई है क्या, डिवाइड, उससे डिवाइड होता है। तो होता है 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 3 को क्या करना है, एज इट इज़ रखना है। अब 3, 2 और 1, और ये 3, 2 क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो अभी सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 3 जा 6, 6 2 जा 12। ओके, ऐसे मल्टीप्लाई करना है सबका। अब आंसर हमें मिल गया 12। सो एलसीएम क्या होगा हमारा, 12 होगा। ओके, सो नाउ वी मेक दिस डिनोमिनेटर 12। सो अब क्या करना है, पहला वाला फ्रैक्शन लेना है। पहला वाला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 3। तो अब कौन से नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमें डिनोमिनेटर 12 मिलेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 होता है। सो अब 12 से 4 से क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया। आफ्टर दैट एडिशन का साइन लगाते हैं और फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन के ऊपर जाते हैं। 3/4 उसको ऐसे ही रखेंगे। और अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर 4 है, उसको 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 12। तो दोनों को 3 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, अब ये 1/2 है, यहाँ पे 1/2 लिखा। 6 2 जा 12, 6 से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, और डिनोमिनेटर तो वही आएगा 12 12 12। ओके, अब आ गया हमारा आंसर। अब क्या करना है, सारे न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, इसका एडिशन इधर लिखना है और डिनोमिनेटर वंस एक ही बार लिखना है। ओके, तो ऐसे हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सो नाउ हियर, अगर अब आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो रही है कि ये नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, ये नंबर तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर नहीं आता है तो हमें क्या करना है, अभी ये पहला वाला फ्रैक्शन है 3 है उसका डिनोमिनेटर, फिर इस 3 को क्या करना है, ये जो हमारा एलसीएम आया हुआ है उससे ऐसे डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। तो फिर 4 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे हम लोग क्या कर सकते, किससे मल्टीप्लाई करना है, ये ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो और फिर से देखते हैं एक बार। अब नेक्स्ट ये टर्म है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 4 और एलसीएम क्या है 12 है। डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एंड दिस इज़ द लास्ट एग्जांपल। ओके, सो इस वीडियो में खाली एडिशन का हमने देखा था, 3 अलग अलग टाइप्स एडिशन के हमने देखे हैं। ओके, आफ्टर दैट ये इसमें एक टॉपिक था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। बट हमने हमारे लास्ट वीडियो में रैशनल एंड इरेशनल नंबर में वहाँ पे देखा कि हम फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, रैशनल नंबर को। सेम वैसा ही हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या करोगे, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये हमारा वीडियो देख सकते हो। ओके, इससे आप वहाँ पे ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, वापस से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और
फिर लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे भी सेम है, वैसे ही डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। सो तीनों का एलसीएम निकालना है। ओके, सिंपल है, एलसीएम 6 आ जाएगा, राइट। एलसीएम कैसे निकालना है वो देखा हमने। अब डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। 2 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 1/3 है। इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर 6 आएगा, और इसे एज इट इज़ रखना है, बिकॉज हियर डिनोमिनेटर इज एज इट इज़ 6 ही है वहाँ पे। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई इज न्यूमरेटर, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, and this one is as it is, and here denominator is remain same, that is 6 6 6. So last step, you have to add its numerator 3 2 1, that is 6, and denominator 6. Here we got the answer 6 divided by 6. Now you can write this answer as a 1 also. Okay, because 6 divided by 6, that is 6 in the 6 1. So अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग आगे अलग से अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।